हाय विजय, काइंडली वेट। अभी और भी टीम मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं। Hello. I have a question. When is the Zoom meeting starting? Hello? Hello? Bro, Hello? please shut the fuck up, bro. Please. Sorry. हेलो टीम, हेलो एवरीवन। Hello? हेलो। Hello. इज एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Hello. या हाय। मे आई नो हु हु यू आर? Me? या Me, Hadi. ओके, वेयर फ्रॉम? But my English not good. Me little bit. ओके, Little बट bit. दिस इज हिंदी वेबिनार। यू Bank? आर Bank? I want bank. या Okay. शाह बैंक। सो यू अंडरस्टैंड हिंदी? Little bit, little bit. ओके, गुड। I'm learning it. Learning. ओके ओके ओके, ग्रेट। Hello? हाय, हेलो। Okay, so I'm going to share my screen. Okay. So why are you smiling, brother?
My cat did something funny. My cat, ki- Okay, so making. okay, okay. It's very funny. My teppich not working anymore. Making so. Okay, okay. What is this? My cat very. I don't know. Cat. Psst, psst. Pamuk. Pamuk. Benim cat. Cat. Okay, it's okay, okay. Kindly mute yourself so that I can continue. Okay, okay. When I'm smiling, it's because my cat. Pamuk. Wait. Okay, good, good, good. So, hello team. So आज ये शाओ बैंक वेबिनार हमने फिर से किया है. So मैं आप सभी को बताने वाला हूँ what is शाओ बैंक, how it works, what are the benefits of शाओ बैंक. तो जो भी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं उसके क्या बेनिफिट मिलेंगे एंड Can क्या you close your assets WhatsApp? या Can you close your ओके WhatsApp? Yeah, या okay. आई कैन ओके. सो शाओ बैंक जो है हमारा डिजिटल नियो बैंक है. दिस इज डिजिटल नियो बैंक. यहाँ पे जो हमारे नॉर्मल बैंक होते हैं, नॉर्मल बैंक के जैसे सारे फंक्शंस हमको मिलते हैं. बस ये है कि जो इनकी करेंसी है वो अलग है. दे हैव डिफरेंट करेंसी. लाइक दे डील इन HKD हांगकांग डॉलर. My country is India. Okay, we deal in INR, Indian rupees, and lot of people use USDT, US dollar for such type of things. Okay, जो भी ऐसी चीजें होती हैं वहाँ पे US डॉलर USDT यूज करके वहाँ पे हम एक दूसरा वे निकाल के इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं. सो शाओ बैंक में यहाँ पे हमको फंक्शंस क्या मिल रहे हैं? डिपॉजिट का फंक्शन मिल रहा है, बॉन्ड्स मिल रहे हैं, लोन्स मिल रहे हैं एंड इंश्योरेंस. ये चार ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं. ठीक है, जो नॉर्मल बैंक में हमें मिल जाते हैं दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील. बट ये है कि यहाँ पे जो बॉन्ड्स में हमें इन्वेस्टमेंट मिलती है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलती है, वो एक अच्छी और अलग लेवल की इन्वेस्टमेंट मिल जाती है. अगर मैं बात करूँ Sorry, I have a question. My Hindi is not so good. Is it in rupee or in dollar? दिस इज HKD हांगकांग डॉलर. Okay. And is it possible to pay in Einscheißenwährung? Is that possible? Is that possible? How you are controlling my screen? I'm not controlling your screen. What's happening? Hello? So you guys are going to spoil today's webinar, na? I don't know. What? Man, Please what's don't happening? This is my job. Please don't do this. This I will don't do anything, spoil- man. I'm looking like screen. What is your kind and common? You will. Please don't do, Mr. Marvik. Who's this? Mavi, please Can stop you, it. can, I want to educate myself, Mavi. Please stop it. Maverick, please don't do this. I wasn't there. Actually, this is my job. You will spoil my today. Someone changed his name to Maverick and write it that you think I am. Someone changed his name. I think. Okay. Man, So I please think let me someone do here my is job. yeah, no problem. But please don't draw on the paper. I want to educate myself. Okay. So kindly erase, kindly erase. Actually, this is my job. This will spoil my day also. Okay, I'm going to teach my small team like how the things are working here. You can also learn this. This is a helpful thing. Like we have a platform where we can invest a small amount and we receive a good interest from this platform. So you can learn this. Spectrum has left the webinar. Okay. हाय सुंदरलाल सर एंड लव शर्मा. एक्चुअली अभी क्या हुआ था ना, कुछ जो होते हैं ना ऑनलाइन बैठे होते हैं लोग, स्कैमर्स, और जो डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाले, वो लोग आ गए थे. वैसे प्यार से ही मान गए, वो चले गए. मे बी इन बिटवीन वो हमें फिर से डिस्टर्ब करे. तो आज के इस वेबिनार को थोड़ा सा आप सीरियस मत लेना अगर कुछ भी इन बिटवीन अनवांटेड हैपन होता है. ठीक है. ओके लव, थैंक यू लव शर्मा.
सो बाय द वे, चलो मूड सबका अच्छा भी हो गया होगा, उन्होंने कुछ ज्यादा गलत नहीं किया और प्यार से मान गए, वैसे होता नहीं ऐसे। बाकी होता है ना, प्यार से हम किसी को एक बार रिक्वेस्ट करें तो वो मान जाते हैं। सो नाउ वी कैन कंटिन्यू ना। सो शाओ बैंक क्या है? शाओ बैंक तो देखिए, हमने पहले यहाँ पे वर्ड से ही समझ लेना है कि बैंक है। बैंक मतलब एक नॉर्मल जो हमारी बैंक्स होते हैं वही बैंक है। बट ये थोड़ा सा अलग लेवल का, ये इंटरनेशनल बैंक है। प्रोजेक्ट पूरा इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल लेवल पे चल भी रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, अगर मैं जूम मीटिंग होस्ट कर रहा हूँ तो इंडिया में चल रहा है। ये अलग अलग कंट्रीज में चल रहा है, और अलग अलग कंट्रीज में बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। ठीक है। इंडिया में जो जूम मीटिंग होस्ट कर रहा हूँ वो सिर्फ मैं अकेला अकेलौता बंदा हूँ, और बाकी अलग अलग जो लीडर्स हैं वो अपनी पर्सनल जूम मीटिंग करते हैं। ये ऑफिशियल जूम मीटिंग है। इस जूम मीटिंग को शाओ बैंक आप लोगों के लिए होस्ट करवाता है, सो दैट यू विल गेट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट शाओ बैंक, हाउ द शाओ बैंक इज वर्किंग, हाउ द बेनिफिट्स आर देयर, हाउ वी कैन इन्वेस्ट आवर मनी, हाउ वी कैन टेक रिटर्न्स फ्रॉम देम ना। ये सारी चीजें समझने के लिए शाओ बैंक आपको यहाँ पे ये वेबिनार दे रहा है, जो हर वीक 2 बार होता है ना। आज जो है थर्सडे, थर्सडे नाइट 9 PM होता है, और मंडे नाइट 9 PM। तो वीक में 2 बार आप लोगों के लिए स्पेशल जूम मीटिंग होस्ट हो रही है। तो इसका आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं अपनी टीम को इनवाइट करके। लाइक आपने जब भी किसी को प्लान देना है, समझाना है, बताना है, सिंपली आप इसका वेबिनार का लिंक उनके साथ शेयर कर दीजिए। वेबिनार का लिंक शेयर करने के बाद उनको बता दीजिए कि भाई यहाँ पे जो भी होस्ट हैं वो आपको सारे जो भी प्लान है ना, सारा प्लान समझाने वाले हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे सिंपली मेरे से 1-on-1 क्वेश्चन आंसर करके पूछ सकते हैं, और मैं यहाँ पे आंसर भी कर दूंगा। ठीक है। तो देखिए, शाओ बैंक में डिपॉजिट मिलता है, बॉन्ड्स मिलते हैं, लोन मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है। ये 4 मेजर फैक्टर्स जो है हर बैंक में होते हैं। ठीक है। लेकिन शाओ बैंक डिफरेंट कैसे है बाकी बैंक से? देखो, डिफरेंट ऐसे है कि देखो, ये तो सबसे पहले तो हमारे इंडियन बैंक के जैसा सिर्फ इंडिया में नहीं चलता, ये वर्ल्ड लेवल पे चलता है। और यहाँ पे सबसे स्पेशल फंक्शन क्या है? यू कैन इन्वेस्ट योर मनी वाया क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी मतलब आप इसमें इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू कर सकते हैं? मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू। अब वो कितने तरीके के क्रिप्टो करेंसीज होते हैं? 15 टाइप के क्रिप्टो करेंसीज हैं। टोटल 25 तरीके की पेमेंट्स हैं। और इसमें इसके साथ साथ आपको बिजनेस करने का भी ऑप्शन मिलता है। ठीक है। कई बैंक होते हैं जो बिजनेस करने का ऑप्शन तो देते हैं, लेकिन बिजनेस करने के लिए एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होती हैं। आपको कुछ उनके टेस्ट होते हैं, जो पर्टिकुलर टेस्ट पास करना पड़ेगा, फिर जाके आप उनके साथ बिजनेस, उनका जो भी बैंक का फॉर्म और ब्रांच वगैरह ओपन करके उसमें मनी अर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शाओ बैंक को अगर आप यूज कर रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आप सिंपली पहले दिन से एज ए बिजनेस इसको स्टार्ट कर सकते हैं, अपने किसी भी नॉन वन को ये रिकमेंड करो। देखो, आप रिकमेंड करोगे क्या कह के? इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म सजेस्ट करके ना, कि एक छोटी इन्वेस्टमेंट करो, अच्छी रिटर्न लो, लॉन्ग टर्म रिटर्न लो। अब वो इन्वेस्टमेंट क्या है, आगे हम आगे वेबिनार में वो भी चीजें डिटेल में समझेंगे। बट पहले आप क्या कह के किसी को भी ये रिकमेंड कर सकते हो, भाई मैं एक प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वहां पे मैंने एक बार इन्वेस्टमेंट जो दी है, अगले 10 साल तक हर हफ्ते मेरे को अच्छी रिटर्न उसमें मिल रही है। और डेफिनेटली मिलेगी, और मिल भी रही है मेरे को। तो देखो, सारी रिटर्न्स मेरी ऑन टाइम मेरे यहाँ पे अकाउंट में मिल जाती हैं, और मैं ऑन टाइम उसको विड्रॉ अगर करना चाहूँ तो कर भी सकता हूँ। कोई हिडन चार्ज नहीं, कोई इधर उधर की दो तरफी बातें भी नहीं। जो जितना यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आज मैं आपको दिखाऊंगा उतनी ही चीजें हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो जो बता रहा हूँ उसके बाद कुछ और चीजें अलग से हिडन चार्ज लग जाए या कोई एडमिन फीस लग जाए, ऐसा कुछ नहीं। जो मैं बताऊंगा वही चीजें एज इट इज यहाँ पे प्लेटफॉर्म में भी आपको मिलेंगी। यहाँ पे बिजनेस में आपको क्या मिलता है? अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो आपको 20% तक की टोटल जो 10 लेवल की अर्निंग मिल जाएगी। टोटल लेवल जो है 10 है, मैंने अभी आपको बताया। और प्रमोशन क्या है आपका? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। इनवाइट पार्टनर पे क्लिक करके आप इनके बैनर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है। ऑफलाइन के लिए इनके प्रिंट आउट्स भी ले सकते हैं। एंड किसी को भी इनवाइट कर रहे हैं तो ये आपकी लेवल वाइज जो अर्निंग है, ये आपकी अर्निंग रहने वाली है। अभी इसका मैं आपको पूरा एक प्रॉपर चार्ट दिखा देता हूँ। 1 मिनट में स्क्रीन स्टॉप करके ना लॉग इन कर लूँ अपना अकाउंट। मैंने अभी उनकी वजह से अकाउंट लॉग इन नहीं किया था। मैं अकाउंट लॉग इन करता हूँ, वेट कीजिए। अब स्कैमर्स आ गए थे तो मैंने सोचा कि क्यों उनके साथ अपनी अकाउंट डिटेल्स शेयर करनी है। वैसे तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे मैं स्क्रीन अब शेयर करता हूँ आपके साथ फिर से।
तो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट लॉग इन कर लिया है। दिस इज माय अकाउंट, ठीक है, दिस इज माय बैलेंस। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इसमें जो बिजनेस, सबसे पहले मैं बिजनेस पता क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हर किसी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से वो एक छोटी सी अपनी ना अर्निंग, छोटी छोटी सी अर्निंग जो है ना साइड में, जो अपने छोटे बहुत खर्चे होते हैं, लाइक शाम की सब्जी का खर्चा ही निकल जाए, कई लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ढूंढते हैं। और इंडिया में तो इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड ना इतनी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, और ये सर्चिंग ना डेली बिलियंस ऑफ सर्च होते हैं, सिर्फ इसलिए कि हाउ कैन आई मेक मनी बाय, हाउ कैन आई मेक मनी बाय सिटिंग होम, हाउ कैन आई अर्न मनी ऑनलाइन। ये बहुत सारे ऐसे टाइटल जो है ना वो सर्च होते हैं यूट्यूब पे। मैं जो फेमस टाइटल जब भी देखता हूँ ना अर्निंग प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो यही टाइटल्स जो है उस पे चल रहे होते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है, 7 लेवल की अर्निंग है, सॉरी 10 लेवल की अर्निंग है। पहले लेवल पे 7% है, दूसरे लेवल पे 3% है, तीसरे लेवल पे 2.5 है, चौथे पे 2% है, पांचवे पे 1.5 है। ऐसे ही करके आपको 10वें लेवल तक 0.5% का प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट ये कैसा होता है, जो भी आपका जो भी रेफरल आपका होगा उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी बॉन्ड परचेज में। अब बॉन्ड्स को भी समझेंगे यहाँ पे डायरेक्ट, देखिए बॉन्ड में सबसे ज्यादा टाइम लगाने वाले हैं, इसको पूरा अच्छे से क्लियर समझने वाले हैं। सबसे मेन जो शाओ बैंक में फंक्शन है वो है बॉन्ड, और इसी में सबसे अच्छी अर्निंग भी है आपकी, और इसी में सबसे मेन आपकी इन्वेस्टमेंट जो आप करने वाले, सारी चीजें यहीं पे रहने वाली, यहीं से आप घूमेंगे ज्यादा। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या है, आप अगर किसी को रिकमेंड कर रहे हैं, मैंने पहले क्या बताया आपको, एक अर्निंग प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ठीक है। अर्निंग प्लेटफॉर्म में जो लेवल वाइज आपकी अर्निंग कैसे रहेगी, वो जो मैं आगे अब यहाँ पे बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग देखिए आप यहाँ पे अगर जो भी बॉन्ड परचेज करते हैं, ये AA1 है, AA2 है, AA3 है, AA4, 5, 6, 6 तरीके के बॉन्ड्स हैं शाओ बैंक के, जो कि हर महीने 2 महीने बाद चेंज होते रहते हैं। लेकिन अगर आप आज इस बॉन्ड में किसी एक बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको उसमें 10 साल तक उसका रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और वो 10 साल तक, अगले 10 साल तक फिक्स रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले, ठीक है। अगर कोई नया बॉन्ड आ भी जाता है, ये वाले बॉन्ड्स बंद हो जाते हैं, देन अगले जो न्यू बॉन्ड्स होंगे उनकी वजह से जो, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो नए बॉन्ड आ गए तो रिटर्न्स नहीं होगी, इसमें जो एक बार लग गया वो आपका 10 साल तक चलना है, बीच में वो कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। हाँ, कंपनी चलती रहेगी तो डेफिनेटली वो चीजें चलनी है। तो देखते हैं अब हम इन्वेस्टमेंट है कितनी और प्रॉफिट कितना है, ये जानना सबसे जरूरी है। सबसे पहले देखिए, अगर AA1 में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहते हैं ना जितना हम गुड़ डालेंगे उतनी चाय मीठी होती है ना, तो जितनी ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट है उतनी बड़ी रिटर्न है। सबसे पहले अगर हम सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट को देखें तो वहां पे कितनी है रिटर्न, 0.45% डेली रिटर्न है। और इसमें सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी, 400 HKD। 400 HKD, HKD का क्या मतलब है, HKD इज अ हांगकांग डॉलर। अभी जो स्टार्टिंग में वो जो क्या थे ये स्पॉयलर्स जो थे, अभी उन्होंने भी पूछा था व्हाट इज HKD। HKD क्या है, एक हांगकांग डॉलर है ना। हांगकांग डॉलर, जैसे कि शाओ बैंक कहाँ पे बेस कहाँ पे इसका, हांगकांग में। तो हांगकांग में बेस है तो वहां की करेंसी को यूज करना तो इनके लिए जरूरी था। अब हांगकांग डॉलर जो है वो कितने डॉलर के इक्वल रहता है, वो देखिए यहाँ पे, 1 HKD इज इक्वल्स टू 0.13 USDT। अब इसको अगर आप रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो वो 11 से ₹11.5 के बीच में फ्लक्चुएशन उसकी थोड़ी बहुत रहती है रुपीज में, क्योंकि डॉलर के प्राइस अप डाउन होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रुपीज के प्राइस भी अप डाउन होते हैं। अगर मान लीजिए आज आप $100 इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज आपको $100 ₹9,000 का मिल रहा है, कल को वही $100 आप वापस इसमें से विड्रॉ करके बेचेंगे तो क्या पता वो आपको 8800 में बिके आपका, या क्या पता वो 9200 में बिक जाए। तो वो थोड़ी बहुत वेरिएशन फ्लक्चुएशन होती है यूएस डॉलर की वजह से, ठीक है। अदरवाइज HKD जो है ये तो फिक्स है, HKD का प्राइस पिछले 20 साल से फिक्स है, इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। अगर ये 1 HKD 0.13 US डॉलर के इक्वल है तो ये उसी के इक्वल है। डॉलर बहुत थोड़ी बहुत डॉलर में जो चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग रुपीज में चेंज आता है, HKD वही सेम है, ठीक है। तो सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट वाला कौन सा, AA1। अब इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैंने आपको 400 HKD का बताया, अगर आप इसको डॉलर में समझना चाहें तो यहाँ पे जाइए। मैंने आपकी अभी बताया था ना कि यहाँ पे मल्टीपल कॉइन्स ऑप्शन है, तो ये देखिए आपके पास सोलाना, XRP, बिटकॉइन कैश, स्टेलर, डॉज कॉइन, लाइट कॉइन, बाइनेंस कॉइन, ठीक है, और बिटकॉइन, ये सारे इथेरियम वगैरह आप यूज करके इसमें इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, और इन्हीं कॉइन्स में आप विड्रॉ भी ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए विड्रॉ वही बिटकॉइन में लेना है, देन आप बिटकॉइन सेलेक्ट करके कल को विड्रॉ भी इसी में ले सकते हैं, उसमें कोई भी 0.01 चेंजेस नहीं होगा, जो आपका बनता हुआ एज इट इज उतना ही मिलेगा।
लेकिन अभी हम क्या करते हैं, यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स में डॉलर्स ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, और यूएस डॉलर हमें इजीली मिल जाता है, P2P में हम परचेज कर लेते हैं, और ये क्या है, एक स्टेबल कॉइन है। इसको प्रेफर मैं क्यों कर रहा हूँ, ये एक स्टेबल कॉइन है, इसमें अगर फ्लक्चुएशन कभी आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगी तो वो कितनी होगी, ज्यादा ज्यादा 1 या 2 रुपए, बहुत ज्यादा हो जाएगी 3 रुपए तक फ्लक्चुएशन हो जाएगी। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में ये बढ़ता है, घटता कम है। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज अगर मान लीजिए आप $90 के 90 रुपीज के अकॉर्डिंग $1 ले रहे हैं, तो कल को वो 90 से 89 हो जाएगा, ठीक है, 99 जिसको हम कहते हैं, या 91 हो जाएगा, या 92 हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम यूएस डॉलर को प्रेफर करते हैं, ये स्टेबल कॉइन माना जाता है। ओके, तो हम यूएस डॉलर में ही आगे समझते हैं सारा। तो अगर आप AA1 में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिनिमम कितनी आ गई आपकी अमाउंट पेएबल, 51.28 USDT। अब इसमें आप अगर 0.045% का रिटर्न देख रहे हैं, तो ये मिल कितने टाइम तक रहा है आपको, अगले 10 सालों तक। मतलब आज अगर आप 51.28 USDT देते हैं, ठीक है, और अगर आप इसको देखें 3 साल में 10 साल में आपको इसकी रिटर्न कितनी मिलती है, तो वो मैं आपको रुकिए कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 0.45% आप भी निकाल सकते हैं साथ साथ में, 0.45% ऑफ 51.28, ये आपका डेली रिटर्न जो इसमें बनती है डॉलर के अकॉर्डिंग 0.23। अब अगर मैं इसको आपको 1 साल की रिटर्न बताऊं, 365, मतलब 1 साल में आपको 84 USDT मिलेंगे, और ये कितने साल तक मिलना है, अगले 10 सालों तक। मतलब आज आप 51.28 USDT इसमें अगर लगा रहे हैं, ये सबसे मिनिमम लोवेस्ट रिटर्न वाला मैं दिखा रहा हूँ आपको, अभी तो इससे हाई रिटर्न वाले पड़े हैं। तो इसमें आपको 10 सालों में कितना मिल रहा है, $842। इन्वेस्टमेंट आपकी छोटी है, लेकिन रिटर्न आपको कितनी मिल रही है, हाई। और ये रिटर्न कैसे मिलती है, 0.45 तो आपका बन गया एक दिन का, लेकिन 7 दिन तक जो इसकी रिटर्न बनेगी, 0.45 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आता है 3.15। मतलब आपकी प्रिंसिपल का 3.15% हर हफ्ते आपको वापस मिलता रहेगा, और हर हफ्ते आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने के लिए आपके पास मिनिमम 50 HKD से ज्यादा होना चाहिए। मिनिमम 50 HKD मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे विड्रॉल लिमिट है एक, जो कि बहुत कम है, इतनी ज्यादा नहीं है। मिनिमम विड्रॉ कितना आपका है, 50 HKD। ठीक है, और 50 HKD अगर हम डॉलर में देखें कितना है, 6.41 USDT। तो इतने अगर आपके पास HKD है, तो आप हर महीने विड्रॉ, और हर महीने भी लगा सकते हैं, हर हफ्ते अगर आपके इतने बन रहे हैं, तो हर हफ्ते निकाल लीजिए। इवन की अगर आपके पास रेफरल अर्निंग जो है ना, वो डेली अगर इतनी आती है, तो भी आप डेली डेली निकाल सकते हैं, और एक दिन में कोई लिमिट नहीं है कि आप एक बार विड्रॉ करें, 10 बार विड्रॉ करें, चाहे 100 बार करें। नो लिमिट्स ऑन विड्रॉल, नो हिडन चार्ज, नो कमीशन ऑन विड्रॉ। ठीक है, यहाँ पे 0% कमीशन है आपके विड्रॉ पे। अब कई प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, आपको दिखा देंगे महीने का 30% रिटर्न, 40%, 20%, 10%, जो भी रिटर्न उनके प्लेटफॉर्म पे होती हैं, दिखा तो देंगे, लेकिन जब विड्रॉ करने का टाइम आता है, तो आपके प्रॉफिट में से 5%, 10% एडमिन फीस के नाम पे वो कट कर लेते हैं। तो वो ओवरऑल घुमा फिरा के ना, अगर वो 15% दे रहे हैं, तो 12-13% पे आ जाती है गेम, या फिर 13-14 पे रह जाती है। कहीं एडमिन फीस 20% भी है, कई कई प्लेटफॉर्म पे 20% भी है, कभी कभी कहीं कहीं पे ज्यादातर आपको देखने को जो मिलेगा वो 5% है। लेकिन शाओ बैंक में 0% है। इंटरनल ट्रांसफर विद इन सेकेंड्स आप कर सकते हैं, किसी को भी किसी को ट्रांसफर करना है, मान लीजिए बैंक में भी हम ट्रांसफर करते हैं ना, बैंक टू बैंक ट्रांसफर, तो इसमें भी बैंक टू बैंक ट्रांसफर आप कर सकते हैं विद विद इन सेकेंड, 0% चार्ज पे। फिर आते हैं हम AA2 में। AA1 तो होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी थी वो भी पता चल गया होगा। अब आते हैं AA2 में, इससे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाते हैं। इससे एक स्टेप ऊपर जाते हैं, तो आपको मिलता है यहाँ पे मिनिमम 2000 HKD वाला बॉन्ड। ठीक है, जिसकी यूएस डॉलर में अगर वैल्यू देखें, तो 256.4 USDT आपको लगाने पड़ेंगे अगर AA2 बॉन्ड लेना चाहते हैं। और ये मिनिमम बॉन्ड लिमिट है, परचेज लिमिट है, मिनिमम बता रहा हूं मैं। आप इसमें चाहे तो इसको थोड़ा और अबव लेके जा सकते हैं। मान लीजिए आपने क्या करना, $500 लगाने हैं, तो $500 की वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या कीजिए, 10 बॉन्ड है, 20 बॉन्ड सिलेक्ट कर लीजिए। 20 बॉन्ड सिलेक्ट किया आपने, 512.8 USDT आ गया। तो आप ये भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मिनिमम है उतनी ही है। इस बॉन्ड में आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ा के करनी है, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई मैंने 500 नहीं, मैंने $1000 लगाने हैं, तो $1000 अगर आपने लगाने हैं, तो डेली रिटर्न
यहाँ पे आपको जो मिल रहा है 0.55, तो इतने क्यों लेने, आप आ जाइए AA3 में, यहाँ पे आपको डेली रिटर्न मिलेगी 0.65%। ठीक है, तो उससे रिटर्न बढ़िया लीजिए, अगर आपका प्रिंसिपल बड़ा है तो रिटर्र्न बड़ी लीजिए, अगर उससे भी ज्यादा आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाइए 0.75% पे। ओके, तो अभी हम AA2 को थोड़ा अच्छे से क्लियर समझ ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या 0.55% आपका आता है डेली रिटर्न। मंथली अगर आप इसको देखेंगे तो 16.5% मंथली रिटर्न आपको मिल जाता है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें आती है 256.4। 10 बॉन्ड्स के लिए देखते हैं हम, एक बार में आप 10 बॉन्ड खरीदेंगे, कम से कम आपको 10 बॉन्ड लेने पड़ेंगे, तो 256.4 यूएसडीटी आपका बनता है। अभी हम इसको देखते हैं कि आपका 256.4 यूएसडीटी अगर बन रहा है तो इसका 10 साल में और 1 साल में कितना रिटर्न आपको मिल सकता है, 256.4। ओके, 0.55%, तो आपका एक दिन का बनता है 1.41 US डॉलर, और 7 दिन का बनता है 9.87, ठीक है, 9.87। और अगर 1 साल का देखें हम, तो ये आपका बनता है 514 US डॉलर, मतलब इसके डबल से भी ज्यादा आपको 1 साल में मिल गया। ठीक है, पैसे आपके 6 महीने में रिकवर हो गए, और अगले 10 साल तक अगर आप रिटर्न ले रहे हैं तो 10 साल तक आपको 5,147 US डॉलर मिल जाएंगे। तो ये एक बार लगाना है भाई, एक बार प्रिंसिपल रिस्क पे मान के लगाना है, किसी ने भी ये नहीं सोचना कि ये गारंटेड है, रिस्क पे मान के लगाओ। और जब हम कभी किसी प्लेटफॉर्म में पहले ही रिस्क मान के लगाते हैं ना, तो वहां पे हमें पॉजिटिव आउटपुट ही मिलते हैं। अगर आप उम्मीदें लगा के कोई प्रिंसिपल अपने इसमें लगाने जा रहे हैं ना, तो उम्मीदें लगा के लगाई हुई इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न अच्छी नहीं मिल पाती, वो कहीं ना कहीं लॉस होता है। तो रिस्क मान के लगाओ, भूल जाओ लगा के थोड़ी देर। अभी मैं एक अपने किसी नॉन वन के ना साथ मिलके आया हूँ, उन्होंने 20 लाख रुपए लगाए और भूले पड़े हैं, और वो बढ़ते जा रहे हैं, मैं सुन के थोड़ा सा हैरान था। बट वो अभी भी चिल माइंड है, उनको कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। बट ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे भूल जाना लगा के, याद तो रखो, लेकिन उस पैसों से उम्मीद कम रखो जो ऐसे प्लेटफॉर्म में आप लगाते हो। देखो मैं ऑफिशियल जूम मीटिंग में हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कल को ये मेरे हाथों से जूम मीटिंग छीन ले, या फिर ये जूम मीटिंग होस्ट करने का मौका मेरे को ना दे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि मेरे थ्रू किसी को मैं गलत प्लेटफॉर्म गाइड करूं, या तो मेरे थ्रू कोई बहुत ज्यादा प्रिंसिपल अपना रिस्क पे लगा दे, है ना। बहुत ज्यादा प्रिंसिपल नहीं लगाना, मेरे को रिटर्न कम मिलेगी चलेगा, वैसे भी इस प्लेटफॉर्म में मेरी अर्निंग बहुत कम है, आप लोगों की अर्निंग सबसे ज्यादा है। शाओ बैंक की ये बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। देखो प्लेटफॉर्म और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें मैं आपको जो यहाँ पे आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट करा रहा हूँ ना, अगर किसी और प्लेटफॉर्म में मैं इतनी इन्वेस्टमेंट आपकी कराऊं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट का 50% प्रॉफिट तो मैं ऑलमोस्ट घुमा फिरा के 2-3 महीने में ले लूंगा। लेकिन शाओ बैंक में मेरे को उतना प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। बट ये प्लेटफॉर्म आपको रिकमेंड करने के पीछे जो मोटिव है, वो ये मोटिव है कि भाई मैं अगर किसी को रिकमेंडेशन दे रहा हूँ तो उस बंदे को लॉन्ग टर्म अच्छी रिटर्न एटलीस्ट मिलनी चाहिए, लॉन्ग टर्म चलना चाहिए वो प्लान, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। नहीं तो यहाँ पे मेरे को लेवल अर्निंग नहीं है भाई इतनी ज्यादा, एक बार मिलनी है लेवल अर्निंग। अगर कोई सोचे कि मैं लीडर हूँ तो यहाँ पे मेरी अर्निंग सबसे ज्यादा होगी, मेरी अर्निंग के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, तो नो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी अर्निंग मिलनी है, वो एक बार मिलनी है, चाहे वो अगर किसी को ज्यादा दिक्कत है, डाउट है, तो वो मेरे से आप वापस भी ले लेना। ठीक है, अपने लेवल वाइज आप अपनी अर्निंग मेरे से वापस भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म रिकमेंड करने का मतलब ये है कि अच्छा प्लेटफॉर्म है, लॉन्ग टर्म चल सकता है, लग रहा है। हाँ गारंटी नहीं है, बट ये लॉन्ग टर्म चल सकता है। ऑफिशियल में जूम मीटिंग में हर बार ये चीज बोल देता हूँ, बिकॉज मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये जूम मीटिंग होस्ट करने को नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। लेकिन आप लोगों को पहली रिस्क फैक्टर अगर समझा के चलूंगा तो आप लोग भी लिमिट में रहेंगे। जो 10 लाख अफोर्ड करते हैं उनके 1 लाख ही लगवाता हूँ मैं। आज मीटिंग करके आया, वहां पे भी मैंने यही बोला है, जिसके पास मैं मीटिंग में बैठा था उनको सबसे बड़ा वाला जो बॉन्ड है वो पसंद है। अगर वो कल को कहते भी है ना इसमें इन्वेस्टमेंट करने को, इसमें इन्वेस्टमेंट करवा के अगर मेरे को दूसरे तीसरे लेवल की भी अर्निंग आती है, तो वो भी मेरे को अराउंड लाखों में अर्निंग मेरे को मिल जाएगी एक बारी की ही। फिर भी मैं उनको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, उनको मैं ये या फिर ये इससे नीचे वाले में ही रखूंगा, बिकॉज ज्यादा बड़ा प्रिंसिपल किसी का लगवाना नहीं चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म में। इससे बेटर है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कराने से अच्छा ना उनके 4 जगह इन्वेस्टमेंट में करा दूं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे AA3 में क्या है आपको। यहाँ पे आपको मिलता है 0.65%। ठीक है, 0.65% जो रिटर्न है ये सबसे अच्छी है। ये मिड लेवल की जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये वाली सबसे अच्छी लगती है। अगर किसी के पास है 2, 4, 10 लाख, तो वो इस वाली इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट अपना रख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिलती है 19.5% मंथली रिटर्न। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं तो आपको हर महीने 19,500 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, और 19,500 रुपये अगर मैं आपको
1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट रुपीज के अकॉर्डिंग अगर हम समझते हैं इसको, तो 19,500 आपको 1 महीने का मिलेगा, और 12 महीने में आपको 2,34,000 मिल जाएगा। ठीक है। और अगर यही मैं अगले 10 साल तक बताऊं, तो ये आपका 23,40,000 रुपये आराम से बन जाएगा। 10 साल चलने का अगर चांस हो तो। 10 साल ना भी चले तो ये 3-4 साल से कम नहीं चलने वाला प्लेटफॉर्म, जिस अकॉर्डिंग इनका प्लान है। क्योंकि ये लीडर्स को बांट के गरीब नहीं हो रहा ये प्लेटफॉर्म। लीडर्स को बांटने वाले प्लेटफॉर्म गरीब हो जाते हैं बाद में, अपने इन्वेस्टर को देने के लिए पैसा नहीं बचता तो भागने का ऑप्शन ही रहता है उनके पास। यहाँ पे वो वाला ऑप्शन नहीं है इनके पास। इनके पास है पैसा और कमा के दे रहे हैं। देन इसके बाद आते हैं AA4 में। AA4 में आपका जो है डेली रिटर्न 0.75%। 0.75% अगर आप मंथली देखें तो ये 22.5% बनता है। 22.5% में इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी रहती है? ये वाला तो 1 लाख तक का था, मैंने बता दिया आपको। AA5 में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है? $5,128। अगर हम इसको रुपीज में देखें तो ये अराउंड आपका 4.5 लाख रुपए बन जाता है। तो 4.5 लाख रुपए अगर आपके पास है, एक बारी में इन्वेस्टमेंट करना है, तब आप AA4 में जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे या यहाँ पे ये नीचे वाले 3 बॉन्ड आपके लिए हैं। ठीक है। हर कैटेगरी के पर्सन्स के लिए शाओ बैंक ने बॉन्ड्स प्लान किया हुआ है। बहुत अमीर के लिए भी है और बहुत गरीब के लिए भी है, मिडिल लेवल वालों के लिए भी है। तो अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग आप बॉन्ड्स सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा आपको बॉन्ड अच्छा लग रहा है, कौन से बॉन्ड में आपके पॉकेट की भाई ज्यादा परेशानी नहीं होगी, वो आप देख लो। ठीक है। देन आते हैं AA5 में। AA5 यहाँ पे कितना है? 0.85% मंथली आपका बन जाता है। 25.5% का रिटर्न। और यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट जो है आपका वो 10,256, मतलब 9-9.5 लाख रुपए आपको यहाँ पे एक बार में लगाना पड़ेगा। ठीक है। मिनिमम है ये। इसमें इसमें भी आप अगर 9 लाख रुपए लगा के 9 से ज्यादा जाना चाहते हैं, 20-30 लाख, तो भी आप वहां पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 45 से ऊपर जाना चाहें तो 45 से मिनिमम यहाँ पे आ जाएगा आपका। 45 लाख की यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट है। 51,280 US डॉलर। अब कुछ लोग यहाँ पे आके ना इतने बड़ी मिनिमम डिपॉजिट लिमिट में घबरा जाते हैं, बट कई लोग जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना, वो इसको भी कुछ नहीं समझते। तो यहाँ पे भी आके वो अपने 10 के जगह 20 बॉन्ड ले ले, 1 लाख डॉलर लगा ले, 2 लाख डॉलर लगा ले, वो उन पे डिपेंड करता है। बट आई विल रिकमेंड कि अगर आपको प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझना है तो कोई छोटा सा बॉन्ड ले लो। ठीक है। छोटे बॉन्ड में क्या करो, अपने नीचे एक लेवल बना लो। भाई देखो, आपके लेवल बनवाने में मेरी अर्निंग कम होगी, लेकिन आपकी अर्निंग अच्छी रहेगी, आपको रिकवरी जल्दी मिलेगी। तो एक छोटे बॉन्ड पे पहले एक लेवल बना लो, दूसरे लेवल पे जाके अपनी मेन इन्वेस्टमेंट कर लो, और अपनी इन्वेस्टमेंट का 7% अपनी जेब में रख लो। मुझे नहीं मिलेगा ज्यादा चलेगा, बट आप लोगों को सबसे पहले रिकवरी दिलानी है, बिकॉज आई वॉन्ट टू बिल्ड अ रिलेशन बिटवीन माई ऑडियंस, बिटवीन माई व्यूअर्स, बिटवीन माई सब्सक्राइबर्स। जितने भी मेरे चैनल के थ्रू लोग आते हैं, मैं उनके साथ ना रिलेशन बिल्ड करता हूँ। बिजनेस तो चलो होना ही है, अगर एक बार रिलेशन अच्छा बिल्ड होगा, बिजनेस लॉन्ग टर्म होना है, तो लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए मेरे को आपको प्रॉफिट सबसे पहले देना पड़ता है, जो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा। मेरे हर प्लेटफॉर्म में मेरा यही मोटिव रहता है, टीम की अर्निंग सबसे पहले। और आपको भी अपनी टीम के लिए यही चीजें करनी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट शाओ बॉन्ड्स। ठीक है। अब ये बॉन्ड्स की इन्वेस्टमेंट क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी बता दी आपको, रिटर्न्स भी बता दी हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उसके पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा कौन सी पॉकेट आपकी है भाई। आपकी ये वाली पॉकेट है, बड़ी पॉकेट है, छोटी है, मिडिल लेवल की है, तो वो आप देख लें। वो आपको समझना पड़ेगा, है ना। और इसी के साथ अगर हम लेवल वाली अर्निंग की बात करें, दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। तो लेवल अर्निंग के लिए हैंड रेज हुआ है किसी का, दीपक मिश्रा। यस, आप बोल सकते हैं मिस्टर दीपक मिश्रा, चैट बॉक्स में, या फिर अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। हेलो। हेलो। सर नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते, कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया। मैंने ये 100 बैंक मैंने स्टार्ट किया सर, मेरे को 2-3 दिन ही हुआ है। मैं ओके। इसमें एक मिस्टेक हो गया, मैं ये जानकारी नहीं पाया हूँ। जैसे इसमें मिनिमम जो होता है सर, वो विड्रॉल कितना कर सकते हैं हम? मिनिमम विड्रॉल आपका अगर एचकेडी में देखे तो 50 एचकेडी होता है, और यूएस डॉलर में देखे तो 6.41 था अराउंड, है ना। वो 35-41 थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ। विड्रॉ में अगर हम जाएंगे तो मिनिमम आपके पास अगर 50 एचकेडी है तो आप निकाल सकते हैं, जिसकी यूएस डॉलर में वैल्यू बनती है 6.41। ओके, तो हाँ। मिनिमम 50 HKD अपन निकाल सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, जब आपके पास 50 दूसरा एचकेडी है, इंस्टेंट विड्रॉ।
ओके ओके। एक सवाल और था सर, ये जो इसके अंदर जो ये डेबिट कार्ड जैसे बना हुआ है, ये क्या हम फिजिकल मिलता है किसी को अगर मंगवाना हो तो? ये आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड है। अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, उसके लिए आपके चार्जेस लगेंगे। ठीक है, मंथली जो चार्ज है उसका 1000 HKD है, मतलब 1000 HKD मंथली चार्ज है। हमारे लिए बहुत ज्यादा, रुपीज में बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, उनके HKD के अकॉर्डिंग तो कम है, लेकिन हमको ज्यादा पड़ जाएगा। और अभी इंडिया में ये ऑपरेटेबल नहीं है हर जगह। हर जगह क्या, बहुत कम जगह पे है वो यहाँ पे है भी नहीं, इंडिया में आपको मिलेगा भी नहीं जल्दी। ओके, ऑनलाइन नहीं नहीं शॉपिंग वगैरह वैसे। में जो है, अलीबाबा वगैरह पे जैसे वो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे ये चल सकता है। जो ओके, इंटरनेशनल शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे ये चल सकता है, लेकिन उसकी भी तो ये प्लानिंग जो चल रही है। हाँ बोलिए। ओ- ओके ओके सर, ये जो जैसे अपन इसको जैसे अमेजोन वगैरह पे हम अगर बाइंग करना चाहे, इनसे कोई भी चीज शॉपिंग करना चाहे, तो हाँ एटीएम हाँ, कार्ड का कैसे यूज करेंगे हम वहाँ पे? मैंने ये ट्राई किया था अभी। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे ना ये कार्ड चलता नहीं है, वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके। HKD वहाँ के जो हांगकांग के लोग हैं ना, उनके भी जो HKD जो है ना, वो यूज तब होते हैं जी जब वहाँ के सर्वर से वहाँ का जो, आप अगर अमेजोन ऑन करोगे ना वेबसाइट, जैसे Amazon.in इंडियन वेबसाइट है, ठीक है, Amazon.com जो जी। है ऑफिशियल है, ग्लोबल है। और वहाँ का HKD के अकॉर्डिंग जो फ्लिपकार्ट या अमेजोन चलता है, उसमें थोड़ा बहुत ये चल सकता है। अपने यहाँ पे ओके इंडियन साइड पे नहीं चलता, मैंने वो ट्राई किया था, वो नहीं एक्सेप्टेबल नहीं था वहाँ पे। ओके ओके ओके। हाँ, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। आपका कांटेक्ट नंबर वगैरह कुछ ऐसा चैटिंग में लिख देते सर, तो प्रॉब्लम मैं नहीं लिख देता आता। हूँ। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, 1 मिनट। मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ। आपके ओके सर। अपलाइन कौन है? हम तो यहाँ मनुज सिन्हा सर के साथ ज्वाइन किए हैं इंडिया से। ओके ओके, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। मनुज तो सिन्हा ये सर मैंने के नंबर साथ। आपको चैट बॉक्स में दे दिया है। तो दिस इज ओके ऑल सर। अबाउट शाह बैंक। किसी और का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। बहुत छोटा सा प्लान है, प्लान तो मैं 5 मिनट में ही समझा देता हूँ, बाकी जो है बातें जरूरी होती हैं, सबको ये चीजें, रिस्क फैक्टर बताना सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी और मैंने का इसके कोई अंदर डाउट है? सर एक्सेल भी बनाए हैं अभी। ओके। एक्चुअल में आईएनआर में इसको समझाना थोड़ा आसान हो जाए, इसके लिए मैंने एक्सेल बनाए हैं इसके आईएनआर के। एचकेडी टू आप आईएनआर अगर हम किसी को बताएं तो आसान हो जाता है। आप मेरे को वो सेंड कर देना। वैसे मैं क्या करता हूँ, मैं ओरिजिनल चीजें सामने रखता हूँ, पता है क्यों? INR में समझा दो और रियल वेबसाइट पे जाने के बाद फिर कंफ्यूजन बहुत हो जाती है लोगों को, फिर पूछेंगे ये HKD में कैसे, ये कैसे है, तो इसलिए रियल जो चीज सामने पड़ी है उसको प्रैक्टिकली देखिए। अपना अकाउंट कोई नहीं दिखाता, अपना वर्चुअल कार्ड कोई यहाँ पे ऐसे शेयर नहीं करता। मैं नहीं डरता, मैं तो रियल चीजें सामने सबके शेयर करता हूँ। एंड इसके बाद क्या है कि देखिए, मैं तो अपने ट्रांजेक्शन आपने देखनी है। ये देखिए, मेरी टोटल डिपॉजिट इस अकाउंट में, जो एक और मेरा अकाउंट है फादर के नाम का, उसमें भी है थोड़ी बहुत। यहाँ पे देखिए टोटल डिपॉजिट, टोटल विड्रॉ कितना है मेरे पास। अगर मैं, आप मेरा ट्रांजेक्शन्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन हिस्ट्रीज में सारी चीजें शेयर करता हूँ, ओपन रहता हूँ मैं। कई लीडर्स क्या करते हैं, कुछ चीजें नहीं शेयर करते हैं। मेरे पास देखिए सही बात। आज के दिन में देखिए क्या विड्रॉ है, ये आपके सामने है। क्या अर्निंग है, ये सब आपके सामने है, ये सारी चीजें। नो प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन मैं आपका एक कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया, मैं इस पर व्हाट्सएप वगैरह में कुछ बातें मेरे को आपसे करनी है वो मैं कर लूंगा। ठीक है ठीक है। ठीक है साहिल सर। चौधरी मिस्टर, हाँ जी, ओके ओके सर, ओके दीपक मिश्रा सर, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट है? हैंड रेज है मिस्टर साहिल चौधरी, आप बोल सकते हैं, कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाय हाय, हेलो। हेलो सर, नमस्कार सर। अच्छा, नमस्ते ये नमस्ते। मैं भी दो दो दिन हुआ हूँ, कल ही ज्वाइनिंग दिया हूँ, एकदम नीचे वाला जो 52 समथिंग का। तो मेरा ओके। ऐसे तो मैंने बहुत दिन से ये देखा हूँ, ये मेरा अपलाइन मन्नू चिन्ना बोल के एक है यूट्यूबर। तो बात वही है कि एक्चुअली बहुत सारे प्लेटफॉर्म हम लोग का पास आया, फिर तुरंत बात चला भी जाता है, ये भी एक तो टेंशन आ जाता है। जी तो जी आप जी। लोग पहले से है, और हम लोग देखा ये मतलब देखने में तो सब कुछ ऑनलाइन देखता है, वेबसाइट वगैरह जो भी है, लेकिन फाइनली हम्म
फिर थोड़ा दिन बाद बहुत कुछ आ जाता है सामने में, फिर ये भी एक तो मुश्किल आ जाता है। ऐसे तो टीम बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें तो सिर्फ वन टाइम इनकम है, वो अलग बात है। लेकिन खुद भी हम और एक आईडी बना के इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, और भी थोड़ा बड़ा अमाउंट, लेकिन वही एक टेंशन वाली भी बात कभी कभार आ जाता है। तो इसीलिए आपका जूम मीटिंग मैंने देखा, उधर उधर निकाल के फिर आया, सोचा आपसे ठीक है। पूछूं। नहीं नहीं, अच्छी बात है। देखिए पता क्या बात है, हम प्लेट इन्वेस्टमेंट सेक्टर में जब आ गए हैं तो हमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि हम वो पैसा लगाएंगे जो पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा है। उस पैसे को नहीं लगाएंगे जिस पैसे की नीड है, जिस पैसे पे कोई डिपेंडेंसी है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और 1 लाख में से 50 हजार रुपये आपकी फैमिली को नीड है या कोई काम में चाहिए, तो वो आप 50 हजार को कभी भी उस 1 लाख में नहीं जोड़ सकते। आप ये मानेंगे आपके पास 50 हजार एक्स्ट्रा है ना, तो 50 हजार को आप ले आके सीधा शाओ बैंक में मत डालिए, 5 जगह पे डाल दीजिए डिवाइड करके। इन्वेस्टमेंट का रूल है कि कोई भी प्लेटफॉर्म आपको हमेशा रिटर्न्स नहीं दे सकता है। ठीक है, एक हमेशा एक ही प्लेटफॉर्म में नहीं जा सकती, अलग अलग प्लेटफॉर्म में डालिए, ताकि आपको ये रहे कि एक कोई प्लेटफॉर्म कभी धोखा दे तो आपके पास बाकी 4 प्लेटफॉर्म्स ऐसे हो जो आपको संभाल सके, है ना। और कुछ नहीं पता कौन से प्लेटफॉर्म से लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न मिल जाए। तो ऐसा नहीं, अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले अपने पॉकेट को देखिए, अपने आप को पहले स्टडी कीजिए, मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूँ। मैंने आज देखिए इसमें लगभग 1.5 लाख से ऊपर मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो 1.5 लाख रुपए मैंने अगर इसमें लगाया तो मेरे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में भी कुछ पैसे लगे हुए हैं, लगाने को मैं यहाँ पे और बढ़ा के लगा सकता हूँ। लेकिन एक जगह पे ही क्यों करना। मैं ये यहाँ पे सिर्फ अपनी जो जॉब करने के लिए या फिर जो मेरा वेबिनार होस्ट करने का जो चार्जेस है मैं जो लेता हूँ उसके लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म सजेस्ट करने आया हूँ, लेकिन अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ अच्छा इन्वेस्टमेंट का तरीका भी बताना चाहता हूँ। इसी मेरा भी चैनल है, आपने कुछ वीडियोस मेरी भी देखी होंगी यूट्यूब पे। मैं वीडियो में भी लोगों को यही चीजें गाइड करता हूँ हमेशा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मिस्टर साहिल। नहीं सर, ओके, थैंक यू। हाँ लगा, ऐसा थैंक यू नहीं मैं सर। कह रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म में ट्रस्ट मत करो, ट्रस्ट करोगे लगा के टेंशन फ्री रहोगे तब मिलेगा। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना कि भाई सब कुछ इसी में लगा दो, है ना। मैं इसके साथ ये तो है नहीं आपको कोई और प्लेटफॉर्म भी दे रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ अभी। अगर आप समझो कि मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म लेके जा रहा हूँ तो आप कहो भी गलत। बट ये है कि ट्रस्ट करो, लिमिट में करो, लेकिन खुल के करो। ठीक है, खुल के मतलब इन्वेस्टमेंट वाला नहीं, वैसे दिल से कि एक बार लगा दिया तो ठीक है, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, ऐसे तो सारी साइट तो इसका जो भी है आप लोग देखा है तो कम्प्लीटली मैंने, ओके है ना। हाँ देखो, मैं अगर आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ ना, मैं ये मीटिंग होस्ट कर रहा हूँ, मैं इसकी वीडियो कर रहा हूँ, इट मीन्स मैंने अपनी तरफ से 100% रिसर्च किया है और सब कुछ मेरे को यहाँ पे जेन्युइन मिला है, कुछ भी मेरे को गलत नहीं मिला। फिर भी मैं वही किसी को चीज गारंटी जानना वर्ड नहीं चाहता बोल हूँ। सकता ना, नहीं, गारंटी बोल गारंटी नहीं तो सकता। बात नहीं है, कोई खुद का हाँ भी लेकिन, गारंटी नहीं हाँ रहता है। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो बहुत अच्छा है, जेन्युइन है, लॉन्ग टर्म चलने वाला प्लेटफॉर्म लगता है अगर आप इसकी वेबसाइट को देखें। ठीक है, वेबसाइट जेन्युइन है, ऑथेंटिकेट है, कोई हिडन चार्ज नहीं, ट्रांसफर बहुत फास्ट है। ठीक है, विड्रॉ करता हूँ मैं, आज तक मैंने 100 से ज्यादा विड्रॉ किए हैं। आपको मैं हिस्ट्री दिखाऊं तो आपको, रुकिए मैं फिल्टर करके ना हिस्ट्री दिखाता हूँ। ये भी चलिए ट्रांसपेरेंसी एक और दिखा देते हैं। 100 से ज्यादा विड्रॉ किया हूँ, कभी भी 5 मिनट से ज्यादा तो मेरे को टाइम लगा ही नहीं है। अब ये देखिए अच्छा, मैंने विड्रॉल। फिल्टर कर दिया अपना, सारे विड्रॉल्स हैं, ये मेरे विड्रॉल्स हैं जो मैंने इसमें लगाए हुए हैं। ये अच्छा 12 नवंबर तक आगे 100 से ज्यादा विड्रॉल मेरे हो चुके होंगे इसमें राउंड। ये अक्टूबर मंथ में भी गए हैं, ये सितंबर मंथ में है, और मैं इसको अप्रैल से कर रहा हूँ, 19 अप्रैल से। अब ये देखिए ये मेरे सारे विड्रॉ हैं जो, आपको मैं इसकी हिस्ट्री अगर चाहिए तो मैं अपने बाइनेंस की हिस्ट्री भी इसके साथ मैच करके दिखा दूंगा, वो भी नहीं, वो पाँच वो पाँच तो मिनट मिनिमम 5 मिनट के अंदर ये डिपॉजिट हो चुका है। हो जाता है। हाँ वो, और कई प्लेटफॉर्म मैंने देखे हैं जिसमें विड्रो का इशू रहता है 72 आवर्स, या हाँ फिर कुछ हाँ और हाँ। टाइम, 2 दिन 1 दिन, या फिर आज लगा दो कल मिलेगा, चार्ज काट के 5-10% चार्ज काट के। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बैंक है तो बैंक के जैसे ही चल रहा है। अगर आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये कहीं भेजना है तो 100 के 100 वापस वहीं पे ही जाएंगे जहाँ पे आपने भेजना है। ठीक है, हाँ अगर उसके अकॉर्डिंग आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भेज रहे हैं, वहां पे जो चार्ज है वो तो अलग है। मान लीजिए बिनांस में भेज रहे हैं, वहां से जो वापस ले रहे हैं उनका प्लेटफॉर्म का चार्ज है। ये बैंक है तो बैंक पे हाँ, क्या है, अपना सेविंग अकाउंट में आपके पास 1000 रुपए, और आपको 1000 का 1000 किसी को ट्रांसफर करना है तो वो पूरा 1000 ही जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे। अच्छा, ठीक है सर, और किसी का थैंक यू। कोई डाउट। ओके सर, थैंक यू। वेलकम 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 साहिल।
हाँ जी, और किसी के कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? मिस्टर लव शर्मा आप अभी हैं यहीं पे? सीनियर एग्जीक्यूटिव विपिन कुमार, यस मिस्टर विपिन कुमार इज हियर। सुंदरलाल सर थैंक यू, आप आगे आज ज्वाइन कर लिया आपने। हाँ जी, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए, नहीं तो करते हैं मीटिंग, हम ओवर करते हैं, है ना? चैट बॉक्स में आ गया किसी का मैसेज। ओके ओके ओके, थैंक यू, मैं आपको वहाँ पे आप नंबर सेव कर लूंगा। व्हाट्सएप पे हाय आ गया है। थैंक यू लव शर्मा, गुड इन्फॉर्मेशन आपने कहा है, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, विपिन कुमार, हाय सुंदरलाल सर, हाय हाय हेलो, कैसे हैं? बोलिए, कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए, हम नहीं तो फिर करते हैं इसको ओवर। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा आपने रिस्क फैक्टर बताया, तो हाँ मैंने अच्छे से हाँ, सुना। तो ओके। डेफिनेटली हर एक पर्सन को अपना रिस्क फैक्टर समझ के ही अपने डिसीजन को लेना चाहिए। अगर उसके पास एक्स्ट्रा पेमेंट है तो उसको भी डिवर्सिफाई में रखना चाहिए। किसी एक पे हम्म। 100% डिपेंड नहीं होना चाहिए। कोई भी हाँ चीज हाँ। का कोई फिक्स गारंटीड नहीं है, कुछ भी हो हम्म। सकता है। तो हम जितना ज्यादा अपने रिस्क को डिवर्सिफाई रखेंगे, इतना ज्यादा हम सेफ रह सकते हैं। हाँ, और प्लेटफॉर्म हमेशा अच्छे से देख के समझ के, मैंने अपने एंड पे आपको देखिए सबको प्लेटफॉर्म के बारे में बता दिया, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। आप भी अपनी तरफ से कुछ और वीडियोस प्रेफर कर सकते हैं वेबसाइट के बारे में देखने के लिए, वेबसाइट का डोमेन चेक करने के लिए हुईज वेबसाइट पे जा सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ। अगर आप हुईज पे आते हैं, ठीक है, डोमेन चेक करने के लिए कई लोगों का होता है ना कि कितने टाइम तक चलेगा, हुईज पे आप जाइए, ठीक है। व्यूज यहाँ पे क्या होता है, इसका क्या काम है, किसी भी प्लेटफॉर्म की वेबसाइट के बारे में अगर आपने देखना है कि वो प्लेटफॉर्म कितने टाइम तक रजिस्टर्ड है, कितने टाइम तक चल सकती है, वो यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं। वेबसाइट को डालिए, सर्च कीजिए। अब देखिए यहाँ पे डोमेन नेम है shaobank.com, ठीक है। रजिस्टर कितने तारीख को हुआ है? ये 2022 में 7वें महीने 17 तारीख को। और चल कितने टाइम तक चलेगा ये? यहाँ पे एक्सपायरी डेट क्या है? 2032 तक है, मतलब ये पहले से ही लॉन्ग टर्म सोच के आए हुए हैं, 2032 तक है। मैक्सिमम 10 साल तक का ही लाइसेंस मिलता है, और 10 साल तक का इन्होंने ले लिया, उससे आगे आगे रिन्यू जरूर ये कर लेंगे। देन इसके बाद अगर आप देखें, रजिस्टर्ड नेम क्या है भाई, किसने रजिस्टर करवाया? वो है यांग शाओ। यांग शाओ कौन है आपको पता है? शाओ बैंक के फाउंडर एंड सीईओ, यहाँ मिस्टर यांग शाओ। तो देखो यहाँ पे मेन जो फाउंडर और सीईओ, उसके नाम पे सारी चीजें चल रही हैं। कोई भी पर्सन अपने नाम पे अगर कभी फ्रॉड करना चाहता होगा ना, तो ये चीजें नहीं करता। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है नेम हाइड करने का, या फिर वेबसाइट किसी भी पर्सन के नेम पर रजिस्टर करके ये यहाँ पे रन कर सकते थे, लेकिन अपने मेन नेम पे इन्होंने रजिस्टर किया। जो यहाँ पे एड्रेस है, आपको ये एड्रेस भी एग्जैक्ट इनके हेड ऑफिस की है, ठीक है, हांगकांग बेस्ड है। इसके साथ साथ इनका जो दूसरा हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है भाई? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं, उसका एड्रेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो गूगल पे सर्च करने के बाद जो ये यूके का एड्रेस आता है, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम का, ये यहाँ पे आ जाता है। अब ये सारी चीजें इतनी ट्रांसपेरेंसी यार कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता, इसलिए मेरे को ये चीजें अच्छी लगती हैं। देखिए गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन मेरे को अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि भाई अच्छे प्लेटफॉर्म में हूँ। आज अगर मैं किसी का 1 लाख 2 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो शायद वो अगले 10 साल तक उसको सच में अच्छी रिटर्न्स मिलती रहेंगी, और वो हर हफ्ते उसको छोटी छोटी हेल्प जो है उसके प्रिंसिपल से मिलती रहेंगी। कुछ पर्सन होते हैं ना, जो हर हफ्ते किसी को नीड है, तो भाई वो यहाँ से विड्रॉ करो, सेल करो, और कैश करो अपने पैसे, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि सबके डाउट्स क्लियर होंगे। किसी और का कोई डाउट है तो अभी भी है, 1 2 मिनट और पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वेबिनार। हेलो हेलो। हेलो। सतीश हाँ सर। जी। हाँ सुंदरलाल हाँ, सर बोलिए। मेरा सवाल था सर, आप जो वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जूम सेशन का, वो हम्म। आप कंपनी द्वारा आप प्रमोट कर रहे हैं, ये बात बोले हाँ आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आप आपको डायरेक्ट बात हो रहा होगा ना सर? मेरा डायरेक्ट कंपनी के साथ बात होती है। अभी यहाँ पे हमारी जूम मीटिंग में थॉमस, मिस्टर थॉमस सर, कुड यू स्पीक 2 वर्ड्स फॉर अस? हाय मिस्टर थॉमस सर। एक्चुअली देखिए, ये जूम मीटिंग में हर बार कोई ना कोई ऑफिशियल बंदा होता है,
अब यहाँ पे थॉमस सर बैंक के डायरेक्ट एम्प्लॉय हैं ये, ठीक है। अभी देखिए ये क्या है कि बिजी रहते हैं बहुत, इनका होगा कुछ काम कर रहे होंगे, लेकिन इन्होंने ज्वाइन जी किया होता है जस्ट रेगुलेट करने के लिए भाई, कि मैं मीटिंग कर रहा हूँ तो मैं सबको बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ। सतीश सर, एक और सवाल है। जो आप वीडियो वगैरह दे रहे हैं साव बैंक का, जी वो तो सारा एडिटिंग लगता है, एकदम नेचुरल नहीं लगता है। नेचुरल कुछ ऐसा, जैसे यूके में इसका बैंक है या हांगकांग में है, तो उसका कुछ नेचुरल फोटो दिखता तो मजा आता सर, कुछ समझ में आता। तो अब नेचुरल, मैनिपुलेट नहीं नहीं नहीं, मैंने वीडियो में तो कुछ ऐसा दिखाया नहीं, मैं वीडियो में तो हमेशा सब कुछ नेचुरल दिखाता हूँ, एडिटेड तो कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। अभी अपना देखिए से लगता जैसे, है कुछ। जी जी। नहीं 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 नहीं, एडिटेड नहीं है सर, एक्चुअली क्वालिटी होती है। अभी देखिए मैं यहाँ के ना आपको जो ग्लोबल हाई स्मिथ हुआ था डेफिनेशन। इनका एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी जो इन्होंने सेलिब्रेट की थी, उसकी वीडियो आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए जरा। तो ये देखिए ये एनिवर्सरी हुई है। अब ये मिस्टर यांग शाओ आपको इसमें दिख जाएंगे, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ शाओ बैंक। अब ये देखिए ब्रांडिंग जो है सब रियल है, ठीक है। ये ये एडिटिंग नहीं ग्लोबल लग रहा है स्मिथ, सर। ये एडिटिंग नहीं है आपको ना, क्या, आपको कैसा लग रहा है? ये रियल है। ये इतनी बड़ी एडिटिंग कोई नहीं सर। अभी देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयज भी दिखेंगे, ये देखिए, ये एडिटिंग थोड़ी है। अभी देखिए और भी चीजें हैं आगे, अभी मैं आगे करता हूँ थोड़ा सा। अब ये टॉप जो इनके एम्प्लॉयज हैं ये सारे हैं यहाँ पे, जो, अब ये जो पर्सन है ये मिस्टर यांग शाओ। अब ये चारों इनके मेन एम्प्लॉयज हैं, ये फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर यांग शाओ, और चीफ बॉन्ड स्पेशलिस्ट रोंग टैंग, ये बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये इनके एम्प्लॉयज हैं जो वेबसाइट पे भी आपको दिखेंगे, इनके डॉक्यूमेंट्स में भी दिखेंगे, हर जगह यही दिखने वाले हैं, ऐसा नहीं है कोई और है। अब आप बताइए यहाँ पे आपको एडिटिंग दिख रही है? चलिए सतीश सर, जो हाँ कंपनी है साव बैंक, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर एक सवाल, इंडिया में जो इनका फाउंडर है, कभी आने का चांस है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिजनेस हम देंगे और कोई इवेंट करवाएंगे तो डेफिनेटली आएंगे। ये लोग चलिए। ना देखिए ज्यादा दिखावे में अगर वो बिलीव करते ना, तो यार देखिए अगर दिखावे में बिलीव करते तो इनको आने में क्या था, तो आगे और कर बहुत कुछ यहाँ पे दिखा के भी चले जाते। लेकिन ये हाँ बैकएंड में भी दिख रहे हैं, अपने रियल ऑपरेशंस में भी यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। और बड़ा इवेंट कुछ अगर होता है, कुछ हम बड़ा करके दिखाते हैं, तो इवेंट भी ऑर्गेनाइज करेंगे, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसमें जरूर आएंगे, एम्प्लॉयज आएंगे, फाउंडर आएंगे। और इनके जो फाउंडर है यांग शाओ, कोई छोटे मोटे पर्सन नहीं है सर ये। अब मतलब मैं बता नहीं सकता, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। और शाओ बैंक कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, बहुत बड़े लेवल का ये बिजनेस है। तो किसी बड़े फाउंडर को बुलाने के लिए एक बड़ा कोई मतलब मोटिव होना चाहिए, और उसके पीछे एक मैसेज भी तो होना चाहिए मेन। अब ऐसे तो आएंगे नहीं ना, मान लीजिए यहाँ पे हमारे 2-4 लोगों की टीम है, 20-10 लोगों की टीम है, और वहां पे से बिजनेस कुछ नहीं हमने दिया, हम सबको डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं। तो ये भी देखते हैं ना। बाकी आएंगे, चलिए जरूर सर। आएंगे डेफिनेटली। मैंने तो जितना चलिए सर, प्लान हम किया हुआ उस लोग हम अकॉर्डिंग। लोग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा साथ हुआ क्या कि कल यूएसडीटी बाय किए बेरान से, वो फंस गया, जिसके अच्छा, कारण कल ही आईडी एक्टिव हो जाता मेरा। और मेरे नीचे 2-3 बंदे थे, उसका भी कल ही चालू हो जाता। अब कीजिए इतना दिन स्टार्ट, लगता है। कोई बात नहीं, स्टार्ट कीजिए, जैसे यूएस डॉलर आते हैं आपके स्टार्ट कीजिए, बॉन्ड्स परचेज कीजिए, करवाइए। और अगर डॉलर की अरेंजमेंट करवानी होती हो तो मेरे को बता दीजिए, मैं भी करवा दूंगा। लेकिन मेरे पास कुछ खास अच्छे रेट पे आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैं खुद महंगे रेट पे ले पाता हूँ, मेरे पास ज्यादा सप्लायर नहीं है। करवा दूंगा लेकिन थोड़ा ठीक ठाक। ओके, तो चलिए ठीक चलिए है, आज की ओके सर। मीटिंग, आज की मीटिंग अच्छी रही भाई, बहुत सारे लोगों ने अपने क्वेश्चन आंसर किए। एंड मुझे अच्छा लगता है जब टू वे कम्युनिकेशन होती है ना, तो मैं इसीलिए जूम मीटिंग में, कुछ लीडर कहते हैं ना अभी बोल लेने दो मेरे को फिर बोलना, मैं इसीलिए बीच में ही कोई डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, बीच में पूछ लेता हूँ, तो अच्छा लगता है, दोनों तरफ से बात होती है तो बढ़िया लगता है। बाकी चलिए,
आई होप कि सबको ये सेशन आज का अच्छा लगा होगा और जो मैंने बताया वो समझ आया होगा। अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, देन आप मेरे को पर्सनली पूछ सकते हैं, या तो अगली जूम मीटिंग जो है मंडे को होगी, वहां पे हम फिर से ये सारी चीजें ओपन करके क्लियर कर लेंगे। बाकी मैं कर रहा हूँ वेबिनार क्लोज। बाय बाय, गुड नाइट।